warm good morning to all of you. Myself R.K. Gautam, PGT Physics from Jawahar Navodaya Vidyalaya, Khuri. And today, my lecture, I am going to deliver my lecture on the topic Kirchhoff's law. Very important, very fundamental, most fundamental topic of class 12 to solve the complex electrical network. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है, हर बच्चा ये जानना चाहता है कि इस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत क्यों है, व्हाट इज द नीड, व्हाट इज द नेसेसिटी. सो आई वांट टू से देयर आर सो मेनी कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल नेटवर्क. Today we are not going to discuss that when you switch on your television or refrigerator, then what is the direction of the current. It's quite easy, simpler. My topic is that if there are number of wires, a mesh is there and you have to find out the direction of the current, you have to find out the amount of the current or the voltage or the resistance. So many things are there. Very important thing, very important topic. And as per the requirement of the CBSE board, I think after 2 and 3 years, you will be getting one question of 3 marks, a numerical type of question, which is totally depend upon Kirchhoff's laws. Pause. Yes, so friend, shall we start? There are two basic laws. First one is, first rule, this is junction rule. It is also known as current's law. Now, let me clear. Please see, this is one of the point which is called junction. This is called junction. आप ये पूछ सकते हैं कि ये जंक्शन जो है बेसिकली इसको समझा कैसे जाए. मेरे ख्याल से रेलवे नेटवर्क जो है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल टू डिस्क्राइब द वर्ड जंक्शन. फॉर एग्जांपल, आई एम फ्रॉम सागर. बीना बहुत पास है. so many junctions are there like बीना और कटनी और you can say मथुरा जंक्शन. so many junctions are there. बहुत सारी ट्रेनें इसकी तरफ आती हैं और बहुत सारी ट्रेनें इससे दूर जाती हैं. That's why the point is called junction. Now the question is that हमारे फर्स्ट लॉ में which is junction rule, it is also known as currents law. क्यों बोलते हैं currents law? That I will be describing you. Now please see, this is the point. This is called junction. Likewise train. For example, this is one of the current. आप कंसीडर करें कि एक ट्रेन आ रही है जंक्शन की तरफ. This is another train. Say here the current is I1. Here the current is I2. These are the incoming currents. What I am using the term, that is incoming currents. Right? So I1 and I2 are the incoming currents. Now, this is I3. एक ट्रेन दूर जा रही है जंक्शन से, दूर जा रही है. अप ट्रेन, these are down trains. Now, this is I4. So I3 and I4, these are the outgoing currents. Right? Now, what is first law? It is also known as junction rule. The first law is that the algebraic sum of all the incoming currents always equal to the algebraic sum of all the outgoing current. In short, we can say, please see, summation of all the incoming currents is always equal to summation of all the outgoing currents. अब यदि हम अपने जंक्शन को देखें तो I1 और I2 यहाँ इनकमिंग है, I3 और I4 यहाँ आउटगोइंग करंट है. तो हमारी इक्वेशन फॉर्म होती है I1 plus I2 is directly equal to I3 plus I4. जब आप रेफरेंसेस में जाते हैं, NCERT में जाते हैं, तो वहां पर आपको एक वर्ड मिलेगा साइन कन्वेंशन. डियर फ्रेंड, लेट मी टेल यू, हमें कोई भी हमें साइन कन्वेंशन को फॉलो नहीं करना है. हमने इस लॉ को इस तरीके से डिस्क्राइब किया है कि इसमें ऑलरेडी साइन कन्वेंशन इन्वॉल्व है और हमें अलग से प्लस या माइनस साइन देने की आवश्यकता नहीं है. फिर भी याद रखने के लिए बोला जा सकता है कि जो भी इनकमिंग करेंट्स होंगी I1 एंड I2, ये पॉजिटिव साइन से इंडिकेट होंगी. जो भी आउटगोइंग करंट होंगी I3 और I4, इनको नेगेटिव साइन दिया जाएगा. आने वाली पॉजिटिव, दूर जाने वाली नेगेटिव. नाउ
why this law is known as current law? Because this is the whole game of all the current I1, I2 and I3 and I4. All the four basic currents are involved here. That's why we are using the term current law. Now second one, second rule is voltage law. Voltage law. Voltage law. Please see. This is one of the resistor. Say this resistor is R1. Now here we are using a battery. Say the battery, the EMF of the battery is say E1. Now this is the direction of the current. Say this is I1. One more battery is there. This is negative end, this is positive end, negative end, positive end. Say this is E2. Now the current is R2. एक चीज मैं आपको बता दूं, जहां कहीं भी आप वर्ड रेजिस्टेंस यूज करते हैं, इसका सीधा मतलब ये है कि हम यहाँ पे कोई ना कोई डिवाइस कनेक्ट कर रहे हैं. टीवी हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, कूलर हो सकता है, व्हाटएवर. रेजिस्टेंस मींस सम एक्सटर्नल डिवाइस. सो हियर द current is say I2, and please see, from here we have to start, and this is the point where we have to stop. This is called closed loop. What is this? This is called closed loop. Closed loop. हम इसको closed mesh भी बोल सकते हैं. Closed mesh भी बोल सकते हैं. Now, what is second rule or what is second law? मेरे हिसाब से इसको एक्सप्लेन करने की सबसे आसान तरीका है कि हम क्लोज मैश में एक एक आर्म लेके चलें. सबसे पहले ऊपर की आर्म लेते हैं. नाउ प्लीज सी, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ E1 is directly equal to I1 R1. Now E2 is directly equal to I2 R2. Say this is equation number 1 and this is equation number 2. Now what we have to do? Just algebraic sum of both the equation 1 plus 2. So finally our answer will be I1 R1 plus I2 R2 is directly equal to E1 plus E2. E1 plus E2. मेरे ख्याल से इस तरीके से एक्सप्लेन करना ज्यादा आसान है. ओम्स लॉ, वी आर वेरी मच अवेयर अबाउट ओम्स लॉ. ओम्स लॉ का यूज करें, इक्वेशंस को फॉर्म करें. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके सामने आती है वो है साइन कन्वेंशन. फर्स्ट लॉ में आई टोल्ड यू, हमने लॉ को इस तरीके से एक्सप्लेन कर लिया है कि नो नीड टू अप्लाई द साइन कन्वेंशन. बट इन केस ऑफ सेकेंड लॉ देयर इज अ नीड ऑफ साइन कन्वेंशन. बहुत इजी है, कहीं भी डरने की जरूरत नहीं है. हमें एक ट्रेवर्सल इमेजिन करना है. अब ये ट्रेवर्सल क्या भला है? ट्रेवर्सल जो है, आप सर्किट के किसी भी एक पॉइंट से चलना शुरू करें, घूमते घूमते उसी पॉइंट तक वापस आ जाए. चलिए मैं शुरू करता हूं. मैं मूव कर रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. सभी लोग ध्यान से देखें, जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो हमारा ट्रेवर्सल इस तरीके से मूव करेगा. लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस एंड दिस एंड दिस. हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए वापस वहीं आ जाते हैं फ्रॉम वेयर वी वर स्टार्टिंग. राइट. अब आप एक चीज ध्यान रखें, बहुत इजी है, एक बार समझने की जरूरत है. डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल, दिस इज P, डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल, एंड डायरेक्शन ऑफ करंट. यदि ये दोनों सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तब करंट का साइन जो है ये होगा पॉजिटिव. और यदि डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल और डायरेक्शन ऑफ करंट एक दूसरे के अपोजिट है, तब करंट का साइन होगा नेगेटिव. अब हम बात कर लें ईएमएफ के साइन की. इजी है. यदि आपका ट्रेवर्सल बैटरी के पॉजिटिव से एंटर करता है और नेगेटिव से बाहर निकलता है, तब हमारे ईएमएफ का साइन होगा नेगेटिव. ईएमएफ का साइन होगा नेगेटिव. और यदि हमारा ट्रेवर्सल बैटरी के नेगेटिव एंड से एंटर करता है और पॉजिटिव से बाहर निकलता है, तब हमारे ईएमएफ का साइन होगा पॉजिटिव, लाइक दिस. अब यदि हम वापस अपनी इक्वेशन पर आए और इस साइन कन्वेंशन को फॉलो करें
तब हमारी इक्वेशन बनेगी। सब लोग ध्यान से देखें, डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल और करंट I1 एक दूसरे के अपोजिट हैं। I1 का साइन होगा माइनस, तो हमारी इक्वेशन बनेगी -I1R1। अब यहां देखें आप, I2 और ट्रेवर्सल सेम डायरेक्शन है, तो I2 का साइन होगा पॉजिटिव प्लस I2R2 इज इक्वल टू, अब यहां देखें ट्रेवर्सल बैटरी के पॉजिटिव से एंटर करके नेगेटिव से बाहर जा रहा है, E1 होगा नेगेटिव -E1, लाइकवाइज इन केस ऑफ E2 दिस इज प्लस E2, और हमारी दो इक्वेशंस फॉर्म हो जाती है। एक इक्वेशन हमारी फर्स्ट लॉ से, एक इक्वेशन हमारी सेकंड लॉ से। अब क्वाइट इजी, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल 10th क्लास में हमने पढ़ा है, बहुत सिंपल है, इजी है, इनका यूज करके और हम किरचॉफ्स लॉ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो दैट वाज द टॉपिक, किरचॉफ्स लॉ, टू डिफरेंट लॉज आर देयर। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि किरचॉफ्स लॉ को क्लास 12 में पढ़ाने की जरूरत क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है, एग्जामिनेशन पर्पस से सीबीएसई बोर्ड में 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल रिलेटेड टू किरचॉफ्स लॉ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, वेरी इंपॉर्टेंट। और न्यूमेरिकल जो है, जो फिजिक्स में हमेशा एक प्रॉब्लम मानी जाती है, लेकिन सही मायने में यदि हम किरचॉफ्स लॉ को एक बार फंडामेंटिकली और यदि हम एनालिसिस करते हुए चीजों को और साइन कन्वेंशन को प्रॉपरली फॉलो करते हैं, तो मेरे ख्याल से काफी इजी हो जाता है। ओके, सो इन द कंक्लूजन व्हाट आई वांट टू से इज, टुडे वी वर डिस्कसिंग अबाउट किरचॉफ्स लॉ, राइट। First question, what is the need to discuss about Kirchhoff's law to solve the complex electrical network? टीवी में करंट फ्लो हो रही है, निकालना आसान है, रेफ्रिजरेटर में फ्लो हो रही है, निकालना आसान है, लेकिन जहां पर पावर स्टेशन है, बहुत सारे वायर्स आपस में उलझे हुए हैं, वहां पर अलग अलग वायर्स के करंट निकालना है यदि आपको, तो ओनली वन वे, एंड दैट वे यू हैव टू गो थ्रू किरचॉफ्स लॉ। दिस इज फर्स्ट लॉ। नाउ फर्स्ट लॉ इज जंक्शन रूल, बहुत सारी करंट आएंगी जंक्शन की तरफ, बहुत सारी करंट जाएंगी, आने वाली का इनकमिंग, सॉरी आने वाली को बोलेंगे इनकमिंग, इन सब का एल्जेब्रिक सम कर लें, जाने वाली को बोलेंगे आउटगोइंग, इन सब का एल्जेब्रिक सम कर लें, बोथ आर इक्वल, दिस इज फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ बहुत इजी है, ये कहीं ना कहीं ओम्स लॉ जो है उससे मिलता जुलता है, कि किसी भी क्लोज्ड, इंपॉर्टेंट थिंग, क्लोज सर्किट, राइट, किसी भी क्लोज सर्किट में करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन बराबर होगा, इक्वल होगा उस पर्टिकुलर ब्रांच से कनेक्टेड बैटरी के, या इजी वे में यदि हम बोले तो हम ये बोल सकते हैं, इन ए क्लोज सर्किट द algebraic sum of all the EMFs is always equal to the algebraic sum of all the current flowing through the closed circuit and its product with the corresponding resistance. That means E1 plus E2 is equal to I1 R1 plus I2 R2. So I think very simple, easy and brainstorming topic. So today that was my topic. In the next session we will discuss about the numericals, that means practical applications of Kirchhoff's law. Thank you and have a nice day.